من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. अक्सर जमीन शाबाक कीश्वरे हसीन शाबाक तू निशाने अज़्मे यानी शान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाबाक पाक सरज़मीन का निज़ाम कुव्वते अखुव्वते अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा तामिंदाबाद शादबाद मंजिले मुराद परचमे सितारा हो हिलाल रहबरे तरक्कियों कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साये खुदाए ज़ुल्जलाल. Before this, I would like to also thankful to our international director on this project, which Shekhar Mehta ji has very kindly sent us to PDG Ramesh Agarwal, who is also chair of Rotary India Sanitation Mission. So I will go straight from here. We are having our two district governors. These are our verticals, which we are already discussed. This is our advisory protocol, district governors. These are our advisors. These are our district governors. We are having our provincial coordinators. So I was here that Punjab is represented by past President Captain Anwar Qureshi, and same in Gilgit-Baltistan from Imran Shaukat. Then we are having our regional teams, which is under process. We are having so many good Rotarians which are having their experiences in water and sanitation. So we will add more people after some days. So our aim is to, the good health and well-being, which is also a UN sustainable goals. Also, we are working on that plan also, that we are having a good health for our people. Why we are, planning this in Pakistan? Because water and sanitation is a big issue in Pakistan right now. So you see the safe drinking water is a big problem, especially in schools, you see. And then we are also working for the reducing maternal mortalities. Then in schools, we are having such facility, we will upgrade them through our clubs. This all program will be done through our clubs and our district. If you see the sanitation problem, the open defecations problem over here, these are the correlated things. You can see that how we are having some different issues in if we don't have the proper toilets and proper sanitation system. WASH is also addressing all the Rotary focus areas over here. So we will also organize some seminars, and especially on World Water Day, we are also organizing a big event on March 2021. Thank you very much, all of you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Water is my subject and is very close to my heart. When Tazim
asked me that join this team, so I'm very happy to be part of this team. पानी हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और पानी से सारी बीमारियां, all diseases including polio, cholera, everything, they start from water. If you've got a clean water, you can control a lot of diseases. हमारे in our Pakistan and India also, because we are almost same thing, because I've traveled all over India and I've seen the problems there also. Clean drinking water and water sanitation. Because you cannot get clean drinking water जब तक आप sanitation को आप proper नहीं करते. जब तक उसको आप उसकी जो problems हैं sanitation की, toilets की, जब तक वो आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो यू कैनॉट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. राजनपुर के अंदर और मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ जाएं, उन पूरे गांव में दे हैव गॉट टॉयलेट्स, दे हैव गॉट हैंड पंप्स. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हर टॉयलेट के साथ हैंड पंप लगा हुआ था. जो टॉयलेट्स का पानी था वो नीचे से हैंड पंप से दोबारा वापस आता था. सो वी डिड प्रोग्राम कि हमने जितने भी हैंड पंप थे उनको शिफ्ट किया मोर देन 50 feet अवे फ्रॉम दैट टॉयलेट्स. और ये बड़ी ज़रूरी है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, because a lot of people in the rural area they put hand pump just जिसके बिल्कुल अपने टॉयलेट्स के साथ हैंड पंप बनाते हैं. वही जो पानी जाता है सीवरेज का पानी वापस आपके हैंड पंप से ऊपर आता है और वो सारे डिजीज क्रिएट करता है. पहली चीज तो ये है कि ईच क्लब शुड लुक आफ्टर अपने एरिया में कि जो हैंड पंप्स हैं वो टॉयलेट्स के साथ ना हो. और सेम प्रॉब्लम्स आपके स्कूल्स के अंदर हैं. जितने रूरल स्कूल्स हैं उनके अंदर जो पानी सोर्स ऑफ वाटर है ना वो बिल्कुल आपके टॉयलेट्स के साथ है. तो यू आर ड्रिंकिंग वाटर जो आप वो जो टॉयलेट से निकलता है वो आप दोबारा ड्रिंक कर रहे हैं. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि आप स्कूल्स वाले ले सकते हैं इसको करने के लिए. वी डिड दिस प्रोजेक्ट. हमने बहुत से स्कूलों को, सैकड़ों स्कूलों को हमने शिफ्ट किया और रोटरी क्लब मुल्तान के कुछ लोगों ने मेरे साथ हेल्प किया और हमने शिफ्ट किया. सेकंड चीज़ है कि जो हमने सीवरेज है, सीवरेज स्पेशली हमारे रूरल एरियाज में और स्कूल्स के अंदर वो हमारे प्रॉपर सीवरेज नहीं सिस्टम होता. तो सीवरेज प्रॉपर नहीं होता तो ओपन एरिया में चले जाता है और वही जो उसने आपने स्लाइड दिखाई है वो सारा जर्म्स हैं आपके सारे जो है ना वो वापस आपके खाने में, आपके हाथों पे, आपके क्लासरूम में आपकी जगह जाते हैं. आप हमारा फोकस जो पहला फोकस होगा वो ये होगा हम स्कूल्स को और रूरल एरियाज के अंदर जो कम्युनिटी है उनको फोकस किया जाए और उसके अंदर हम लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन को किया जाए. एक हमारे सर्वे किया था, मैं आई वाज विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हमने एक सर्वे किया था कि जितने रूरल एरियाज में स्कूल है, इवन इन अर्बन एरियाज जो लड़कियों के स्कूल थे उसमें ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा था. क्योंकि ड्रॉप आउट पर हमने सर्वे किया, पता किया कि जिस स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पे टीचर्स भी नहीं आती हैं और स्टूडेंट्स लड़कियाँ भी नहीं आती. तो जब उनको टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए तो उनकी जो स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ गई. तो हमने फिर ये प्रोजेक्ट किया. वी डिड मोर देन 100 स्कूल्स के अंदर हमने प्रोजेक्ट्स करके वॉशरूम्स और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमने प्रोवाइड किया. तो उससे स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ गई और टीचर्स भी आने शुरू हो गई. तो ये छोटे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके हम काम करके ना, और ये इम्पैक्ट बहुत है, कम्युनिटी में बहुत इम्पैक्ट बनता है. उसी से आप डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं, उसी से आप हेल्थ कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा. और इसमें जो प्रोग्राम है वॉश, हर स्कूल के अंदर जब आपका सोर्स वाटर सोर्स डेवलप करेंगे तो आप उसके साथ 10 टूटियां लगा दें, 10 टैप्स लगा दें, तो बच्चों को बता दें कि आपने साफ करना है. तो वो एक प्रोजेक्ट आपका ये भी हो जाएगा. उस जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब क्लब्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट. हमारा रेन वाटर जो है ना वो बहुत ज़ाया जाता है. रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करें. अगर आप पीछे चले जाए ना, आज से कोई 50-60 साल पहले, तो पूरे एरिया में, गांव में, एक मेरा पेपर भी मैंने इसमें पब्लिश किया था कि हमारे जितने गांव होते थे इंडिया, पाकिस्तान, इवन अरब में भी, वो जो गांव थे वो थोड़ी सी ऊंची हाइट में बनते थे. तो उनका सारा पानी सीवरेज होकर एक नीचे तालाब होता था उसमें जमा होता था. अब जरा रिकॉल करें आप जितने भी बैठे हुए हैं कि अब तालाब जब जाता था उस तालाब के अंदर भैंसें भी जाती थी, उसके अंदर हर चीज उसमें होती थी. उसके साथ ही हैंडपंप होते थे जो रिचार्ज हो रहे होते थे और उसमें आप काफी फिश, आपके डक्स, वो सारे उसमें आते थे. ये 53-54 के अंदर मलेरिया वालों ने कहा जी कि यहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं. उसकी वजह से वो सारे उन्होंने बंद कर दिए. उस बंद करने की वजह से हुआ कि आपकी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रिचार्जिंग जिसको कहते हैं, वो रिचार्जिंग खत्म हो गई, आपका वाटर टेबल नीचे गिरना शुरू हो गया.
हमने इस पे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। इस्लामाबाद में पहला हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर रिचार्जिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके अंदर हमने 2 साल के अंदर वाटर टेबल 150 से 80 पे ले आए थे, क्योंकि पानी हम उसको रिचार्ज कर रहे थे, पानी ऊपर आना शुरू हो गया था। उसको अब जितना ये इको सिस्टम होता था उस जमाने में, मतलब अबाउट मे बी 1000 ईयर्स इस पूरे एरिया में, तो अभी हम मैं जो टारगेट करूंगा, जो मैं चाहूंगा, उसमें एक तो हमने करना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो पानी हम जाया कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल करके उसको रीयूज किया जाए। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, जो वाटर जो हम जाया कर रहे हैं, उसको हम रीयूज किया जाए। मेरा एक्सपर्टीज इसके अंदर रिसाइकलिंग के अंदर भी है, वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर भी है और ड्रिंकिंग वाटर में भी है। लेकिन मेरा जो मेन फोकस होगा और हमारी टीम का फोकस होगा, जो हमने अब डिस्कस किया है, कि हमने स्कूलों में और रूरल एरियाज के अंदर जहाँ पे बहुत वो गंदा पानी पी रहे हैं, छप्पड़ों का पानी पी रहे हैं, और इसके लिए बहुत मामूली सा एफर्ट करके हम उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे सकते हैं। स्कूलों के अंदर हम बहुत थोड़ा सा एफर्ट करके बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चियां छोड़ देती हैं, जिस स्कूल और टीचर्स छोड़ जाते हैं, अगर हम टॉयलेट्स प्रोवाइड कर दें तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। तो इस पे हम आगे चलते रहेंगे। तो मैं जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, इसके आगे हम चलते रहेंगे। आगे काफ़ी इसका स्कोप है, और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है और मेरे साथ टीम, अल्लाह का शुक्र है कि डीजी साहब हमारे साथ फुल तावन कर रहे हैं, और हम इस चीज़ को आगे लेके बढ़ते रहेंगे। और कोई किसी किस्म की किसी क्लब को ऑल ओवर पाकिस्तान 321, 3272 जो भी जरूरत होगी, मैं हाजिर हूँ, और एडवाइस भी करूँगा और हेल्प भी करूँगा। और आपको जो जिस तरह हमारे भट्टी साहब ने कहा, फाइनेंशियली भी हम लोग ग्लोबल ग्रांट्स के पे भी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चूंकि शेखर जी का जो टाइम है वो 4 o'clock है, और जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे हम जहाँ जो प्रोसीडिंग चल रही होंगी वो वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो मैं अब हमारे जो एडवाइज़र हैं हाजी इफ्तिखार साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने रिमार्क्स दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और आप सब मोस्टली देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी किसी देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये आज से अगर पीछे चले जाएं 40 साल, 30 साल, 50 साल, तो आपको याद होगा कि पूरे गांव में, जो गांव में रहते थे लोग, पूरे गांव में एक वेल होता था, और सारे गांव वाले उस वेल से जो है वो पानी लेते थे और इस्तेमाल होता था। और डिफ़िकल्टी होती थी, औरतें बच्चे पानी लेने के लिए लाइन ऑन लगी हुई हैं और खड़े हुए हैं। और फिर वो पानी कैसा होता था ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि उस वक़्त इतनी रिसोर्स भी नहीं थे और इतने वसाइल नहीं थे कि पानी टेस्ट करवाया जाए। पानी चाहिए होता था, साफ़ पानी, तो वो साफ़ पानी होता था, लोग पीते थे। उसमें पता नहीं होता था कि इसमें कितनी मिलावटें हैं और कितनी लापशें हैं। वो वक़्त गया, गुज़र गया। मुझे याद पड़ता है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं उस वक़्त कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे एक दोस्त, ये लिल्ला एक जगह है मोटरवे पे, आप देखें तो लिल्ले, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे हमने शिकार जाना है। हम शिकार के लिए लिल्ले चले गए। सुबह 5 बजे उठे तो मशके पानी की छोटी छोटी मशकीज़ें जो थे वो लिए हुए थे, और हम घड़ियाल के शिकार के लिए निकले। जब घड़ियाल के लिए हम शिकार के लिए निकले, थोड़ी दूर गए तो प्यास लगी। जब प्यास लगी, वो मशकीज़ा मैं पानी पीने लगा तो मुझे उसमें स्मेल आई। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पानी नहीं पीते, चलो आगे चलते हैं। 2 किलोमीटर और गए, तो 2 किलोमीटर और गए तो वही पानी मैंने पी लिया, क्योंकि और कोई वसाइल नहीं थे। अभी बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि शेखर मेहता साहब मेरे ख्याल में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं फिर आपसे बात किसी वक्त ये शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच हाजी साहब। सॉरी, शेखर जी जो हैं वो जस्ट उन्होंने ज्वाइन इन करने वाले हैं, तो उससे पहले जो है मैं शमसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सही शमसी साहब से, कि वो उनका इंट्रोडक्शन जो है
वो तमाम पार्टिसिपेंट से जो है वो शेयर करें। I'm really proud of the fact that I have been given this honor of introducing a legendary figure, Shekhar Mehta. Shekhar Mehta is the fourth Indian to be the president of Rotary International. Shekhar Mehta was born in 1959 and he went to the St. Xavier's College in Calcutta. And he did his master's in commerce and then chartered accountancy and cost accountancy. He's quite a good academic career and record he has, mashallah. And he was presently, and he has been the head of the Skyline Group, which is engaged in the real estate development. And he is a member of many professional, cultural, and charitable organizations. He has served as trustee of Shelterbox. He is a trustee of Operation Eyesight India, a Canada-based organization. Shekhar Mehta joined Rotary in 1985, and he is a member of the Rotary Club of Calcutta, Mahanagar. He has been the chairman of the Joint Partnership Committee of Rotary International. He has been the chairman of the Strategic Planning Committee of Rotary International, chairman of the Rotary India Literacy Mission, and chairman of the Rotary Foundation India. He has been the chairman of Rotary India Centennial Celebrations, and he has been the chairman of the Rotary India Humanity Foundation. Shekhar Mehta served as director on the board of Rotary International from 2011 to 2013. While on the Rotary International directorship, he has done something very wonderful, and that he added 2 more countries to the fold of Rotary, Bhutan and Maldives, if I am not wrong. And that was a great thing. And he has given the conceptual, Rotary India Literacy Mission, he was the one who conceptualized the TEACH program. You see, TEACH, which became a big success and which has been able to give about 50,000 schools and 15 million children into this literacy program, which is a very big achievement. He has helped take the e-learning program to millions of children. He has been instrumental in setting up more than 15 eye hospitals. And first time when he came to Pakistan, I remember, he was here and he had some doctors from Calcutta who were involved in the heart surgeries of children. And that was, again, a very, very big program. He has been responding to the Prime Minister Narendra Modi's program for national call for the toilets, building of toilets for more than 30,000 people. Shekhar Mehta is spearheading an India-wide program on a collaboration with the Government of India in the areas of water, sanitation, healthcare, and environment. The Prime Minister of India and various ministers you might have seen in the last few months have been in session with him, and he has been able to tell them what Rotary is doing all about in making the life of the people better than what they were having earlier. He is the recipient of the Service Above Self Award, the Meritorious Service Award, this Distinguished Service Award, and he is going to take over the reins of the presidentship of the Rotary International from the next year. Shekhar Mehta is married to Rashi Mehta. She is a social worker. Shekhar Mehta has got a son and a daughter, and he's the person who has championed a very big phrase, and that is that service is the rent that we pay for the space we occupy on this earth. This is what he has been saying, and he says and he promotes that we all should go above ourselves to serve. I present to you Shekhar Mehta. Thank you very much, PDG Saeed Shamsi साहब. शेखर मेहता जी को मैं वेलकम कहता हूँ. टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमने इसको ज़रा जल्दी स्टार्ट किया. So sir, RI President elect Shekhar Mehta ji, myself District Governor, District 327172. मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में वेलकम कहता हूँ. दिस इज योर फर्स्ट visit on my district
as a district governor. So sir, आपके साथ सैन डिएगो में जो आपके साथ हमारी बातें हुई, जो आपकी तरफ से मोटिवेशनल बातें हुई, we are working according to your plan. So Zoom meeting जो कि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में मुसलसल 73rd Zoom meeting program after San Diego. Sir, we are going and every recording is on YouTube. So जैसा कि आपने कहा था कि membership को बढ़ाओ, तो I have achieved my goal 20% within a month. So this is only due to your motivation. Thank you very much. I present you Shekhar Mehta. Assalamu alaikum. A very good evening to each and every one of you. Thank you. It's absolutely a pleasure coming and speaking to my brothers and sisters in Pakistan. Governor Tazim, Yeah. I'm so happy to hear what I heard just now. 20% अगर आपने पहले ही महीने में कर दिए हैं, तो that's outstanding, absolutely. In 1.5 months you've done it, and I've always said that जो growth करनी है वो first 3 months के अंदर में 50% growth करिए, next 3 months में 25%, और जनवरी से लेके मार्च तक में 25%. Last 3 months work very hard to retain all the members that you've got this year and the previous years. So well done, Tazim. I'm so happy to be in your district. Very happy to see Farhan. मुझे दिखे नहीं, but I'm sure Farhan is also here. Thank you so much for organizing this meeting and inviting me here. तुमसे कई बार बातें हुई और discussion हुआ, and I'm so happy that you've taken up some work at the national level, the mission level, and you wish to make a mark in the work of water and sanitation. I'm so happy to see my Aziz friend, Aziz Memon. Wonderful, Aziz, good to see you. सबसे ज़्यादा शायद मैं अगर Zoom calls पे किसी से मिलता हूँ तो वो अजीज से मिलता हूँ. He's such a conscientious Rotarian. He is present whenever, despite being so busy, he tries to be at every meeting. And let me tell you, he is an excellent representative of Pakistan on the board of trustees of Rotary Foundation. मेरा और एक बड़ा करीबी दोस्त है, वो दिख नहीं रहा है, Faiz. I don't know whether Faiz is here or not, but I see so many other of my friends and I'm so happy to see all of them. शमशी साहब, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई आपसे, वर्चुअली ही सही. Very happy to see you. परवेज को देख रहा हूँ मैं. Good to see you, परवेज. बहुत दिनों बाद दिख रहे हो. वो याद है पुराने जब मैं आया था वहाँ, हम लाहौर में वो पता नहीं किस जगह पर गए थे डिनर लेने के लिए. I still remember that. हाँ वहाँ बिल्कुल. One of the best times I've had visiting any country that has been Pakistan. I'm so happy to see all the other Rotarians also. बड़ी खुशी आप सबसे मिलके. एक बढ़िया मौका है. Very nice program on water and sanitation, and Rotary World का sanitation के water और sanitation का champion जो है PDG रमेश अग्रवाल is here. तो जब साजिद ने मुझे कहा कुछ दिन पहले कि जी मैं ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ, कैसे करना, तो मैंने कहा तुम एक बंदे से बात कर लो, वो सारा सब कुछ करवा देगा. And I put him on to Ramesh, and I'm sure Ramesh and he have designed an excellent program. Water, sanitation, both are such huge needs in our parts of the world that हम क्या उसके बारे में कहें. You understand how grave the problem of water is in Pakistan, just as it is in India, especially the dry parts. Western Pakistan, I believe, would have major issues on water. Sanitation की भी, अगर पानी नहीं है तो sanitation की भी issues हमेशा आती ही हैं. And आज इतने सालों बाद, I mean, nearly 73 years of our country's independence, both the countries, we still are struggling with sanitation issues. Fortunately, our current Prime Minister gave a call a few years back, and that 5 years back, and that has really changed the sanitation scenario. हमारे मुल्क में तो totally बदल ही गया है.
जो open shorts, open toilets थे in the open, that have now stopped absolutely. And it's such a basic, इतनी basic चीज है, लेकिन सोचिए हमें वो भी मुहैया नहीं हो रही. हम सबको तो बहुत easy लगता है. We have fancy toilets with some of the best fittings that we have. हम fittings खरीद लेते हैं लाख रुपए की, तो वहाँ पर लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें एक फिटिंग नहीं मिल पाती है. एक टॉयलेट उनके घरों पर नहीं होते हैं. So it is such a need of the hour, and I'm so happy that this program has been taken up. Same as with water. There are still people I know, even in India, and I'm sure the same is in Pakistan. जिस तालाब में वो नहाते हैं वहीं से पानी लेके आना पड़ता है कई बार. पानी को क्लीन कर लेने की फैसिलिटी है कि नहीं है, we are not even sure of that. हमारी गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है. ये तो कोविड के कारण रुक गया, नहीं तो that would have been the frontline program about water, and that was हर घर नल से जल. Water, tap water in every house. So for you and me, it's so simple कि बाथरूम में गए, हम टैप चलाएं और पानी आ जाता है. किसी दिन पानी न आए तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है कि पानी नहीं आ रहा है. But in villages, if you go, I'm sure in far villages in Pakistan also, I wonder if there is tap water in every household. I don't think so. है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो होने की जरूरत है. और सिर्फ वही नहीं जरूरत है, we have to save water. एक आदत डालने की जरूरत है. शुरुआत से बच्चों के अंदर में ये आदत डालने की जरूरत है कि हमें पानी बचाने की जरूरत है. लोग कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर दुनिया में हुआ तो वो पानी के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं होगा, पेट्रोल के लिए नहीं होगा, ऑयल के लिए नहीं होगा, शायद पानी के लिए होगा. तो इतनी जरूरत है और इतनी किल्लत है पानी की, तो उसे हमें बचाने की जरूरत है. जो पानी जमीन के नीचे है उसे कंजर्व करना है, उसे होशियारी से, समझदारी से यूज करना है, और उस रिजर्व को और बढ़ाना है. वो रिजर्व हम क्रिएट तो नहीं कर सकते पानी, लेकिन सेव जरूर कर सकते हैं. तो जो पानी आ रहा है, जो बारिश से आ रहा है, उसे हम बचा सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर दैट कम्स ड्यूरिंग रेन्स गोज वेस्ट एब्सोल्युटली. इट्स कॉल्ड स्टॉर्म वाटर. तो वो स्टॉर्म वाटर वो होता है जो कि आया और बह के चला गया और किसी ने काम नहीं किया, उसे सेव नहीं किया, कंजर्व नहीं किया. वाटर कंजर्वेशन इज सो वेरी इजी. अब अगर उसी पानी को रूरल एरिया में, जहां समझिए जरा सा स्लोप है और आपने एक चेक डैम बना दिया, उस चेक डैम की लागत होगी आपके यहाँ पे शायद 8 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए. उतने से रुपए के अंदर में कम से कम 4 to 8 villages with nearly 2 to 4,000 people can benefit tremendously for years together with just one check dam that you may build. And your topography of your country is just right for making those check dams. और अगर आप इनसे बात करेंगे, रमेश अग्रवाल will tell you, because इस एरिया के जो मैग्सेसे अवार्ड विनर है ऑन वाटर कंजर्वेशन, मिस्टर राजेंद्र सिंह, he is an advisor to the water committee in India. So इनकी मदद लें आप, take use of them, they will tell you. तो एक चेक डैम जो मैं बता रहा था बनता है, तो जो पानी आ रहा है वो पानी आके चेक डैम सामने बन गया तो वो पानी रुक जाता है वहां पर. वहीं पर आपने होल्स नीचे करके एक्विफर में पानी को पहुंचा देते हैं. एक्विफर में पानी जब पहुंचने लग जाता है, नहीं तो अगर वो चेक डैम नहीं होता तो ये पानी बह के निकल जाता. अब वो चेक डैम के कारण वहां पानी रुका हुआ है, वो एक्विफर में पानी चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द पाइप्स दैट यू हैव पुट. द वाटर टेबल राइजेस. व्हेन द वाटर टेबल राइजेस, देयर इज water in the tube wells, hand pumps that are there in the households in the villages. नहीं तो वो सूखे पड़े हैं हैंड पंप्स, कुछ काम नहीं आ रहे. सडनली पानी आने लग जाता है. जो पानी अदरवाइज बह जाता, शायद 3 महीने के लिए ही जो पानी मिल सकता था, अब 12 महीने मिलने लग जाएगा उन्हें बिकॉज ऑफ द चेक डैम. दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन. इरिगेशन अभी तक जो हो रहा था वो एक क्रॉप कर रहे थे जो farmers, they'll be able to do 2 if not 3 crops only because one check dam at the value of only 10 lakh rupees has been put. In India, we have agreed that in the next 5 years, 5.5 years, Aziz, next 5.5 साल के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि उन्हें 1 लाख चेक डैम लगाने हैं.
हमने कहा है कि रोटरी की तरफ से हम 10% चेक डैम्स हम लगाएंगे। काम देखो साजिद इस लेवल का करना है, एंड तजीम एंड द इनकमिंग गवर्नर्स, यू ऑल विल हैव टू कमिट योरसेल्फ। रोटरी का काम इस लेवल का होना चाहिए कि पाकिस्तान का नेशन बिल्डिंग में आपका एक रोल अदा होना चाहिए। 115 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को हो गए। कराची क्लब को कितने साल हो गए अजीज? 87-year-old organization with leaders like Aziz, Sayyid Shamsi, Faiz, Parvez, and so many, Sajid, and so many of you. I'm not naming everybody here. आप सब मिलके, you need to now take programs which will build your nation. As today, India is such a big country, but we had the courage of going and saying that इंडिया के वाटर और सैनिटेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट जितना काम करेगी उसका 10% काम हम करेंगे। इट्स अ बिग थिंग टू से, लेट मी टेल यू। पर अगर ख्वाब बड़े नहीं होंगे तो हम क्या अचीव करेंगे? बस रोटरी में आएंगे, छोटे से काम करके चले जाएंगे तो फिर क्या याद रहेगा? एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एट द वर्ज ऑफ इरेडिकेटिंग अ डिजीज, पोलियो जैसा बड़ा काम हमने लिया और वो नियरली खत्म करने वाले हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये लेगेसी है कि एक डिजीज को अभी 150 कंट्रीज में से 148 में से हटा दिया, ये कम बात नहीं है। और आप भी हटा लेंगे उसे इसी साल के अंदर में, तो दैट विल बी अ फेदर इन द कैप ऑफ द हेल्थ सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड एंड पाकिस्तान इटसेल्फ। तो जहां इस लेवल का काम होता है वहां ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट, 1 चेक डैम 2 चेक डैम की कोई वैल्यू नहीं है। मिलट में 10 क्लब साथ आए, पूरे पाकिस्तान के जितने दोनों डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स हैं वो साथ में मिले, अपना पूरा दम लगा दे और वाटर और सैनिटेशन प्रॉब्लम के अंदर में गवर्नमेंट के साथ में काम करके इसको करें। You will have to start thinking that it is important. And Sajid, let me tell you, while you are doing this, please ensure that you are following the rules and regulations set by Rotary when 2 districts come together. They are not difficult. आप पढ़िए, मल्टी डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी के लिए जो भी रूल्स होते हैं अजीज विल शेयर विद यू और रमेश अग्रवाल विल शेयर विद यू। वेरी सिंपल थिंग्स हैं, लेकिन उनको आप जरूर से फॉलो करिए so that you are working within the framework of Rotary and Rotary Foundation. That's very essential. If it is a national program that you all are doing, both district governors, governor-elect, governor nominee have to be involved in it. Get senior leaders, past governors also involved into the program. सबको साथ लेके चलने की बहुत जरूरत पड़ेगी। एंड एक चीज बहुत जरूरी है, एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, तजीम आप जो कर रहे हो मेंबरशिप के लिए, एक तो ये जरूर ध्यान रखना कि ये मेंबर सब रहे। Retention is extremely important. I am very happy that this big program has been taken up. देखो membership और service projects ये 2 अगर होने लग जाएंगे ना, तभी जाके और रोशन होगा रोटरी का नाम in Pakistan. Right now it is not. Nobody will come you and tell this to you at a meeting, but I am telling it to you because I am your well-wisher. मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान should shine in the world of Rotary, and it can. अगर आपके एक तो ये इलेक्शन इश्यूज कम हो, हमारे यहाँ भी बहुत हैं, not that I am happy with that, but आपके यहाँ भी कम होने की बहुत जरूरत है। इलेक्शन इश्यूज, कंप्लेंट्स, लेटर्स, बैड थिंग। लेट अस नो, हम अपने ही देश का, अपने ही मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं। चिट्ठियां जब जॉन ह्यूको को लिखते हैं तो जॉन ह्यूको को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की इमेज में एक डेंट लग जाता है। फिर एक और चिट्ठी जाती है किसी और की कंप्लेंट करने में, उसके अंदर एक और डेंट लग जाता है। आप क्या खुद ही के मुल्क पर डेंट लगाना चाह रहे हैं? प्लीज स्टॉप इट, डोंट डू इट। कहीं तो एक मसला को सेटल करिए, आपका जो डायरेक्टर है उसके तक ले जाइए। एंड गवर्नर्स, लेट अस स्टॉप दिस। इसको इलेक्शन में जिताना है, उसको जिताना है, जीतने के लिए कंप्लेंट्स करनी है। अरे यार, गवर्नर इस साल नहीं बनोगे, अगले साल बन जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हें गवर्नर बनना है, इसी साल बनना है, ये किसने कह दिया? और मैं ये तब कह रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ। I was just 36 years old when I first applied for becoming the governor. प्रभात रोदगी was my competitor, राजू राजगढ़िया, दोनों थे, हम तीनों इलेक्शन में थे। नॉमिनेटिंग कमिटी में राजू राजगढ़िया got nominated. I thought I'll challenge it. प्रभात रोदगी thought he will challenge it.
मेरे को हमारे एक सुबिमल घोष करके सीनियर पीडीजी हुआ करते थे, उन्होंने बुलाया कॉफी पे। मैं जब जा रहा था, मेरी वाइफ राशि को मैंने कहा सुनो ये मेरे को बोलेगा विड्रॉ करने, मैं नहीं करने वाला हूँ विड्रॉ। मैं गया, कॉफी पीते पीते उन्होंने कहा शेखर तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा 36। उसने कहा जो बंदा प्रभात रोधी उसकी उम्र मालूम है कितनी? मैंने कहा कितनी? बोला 66। बोला तुम 1 साल वेट नहीं कर सकते? मुझे लगा यार बात तो ठीक है, वो बंदा 66 है, मैं 36 हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है 1 साल वेट कर जाओ तो। आई एग्रीड इन जस्ट 2 minutes। मैं घर से सोच के गया था नहीं करूंगा, बट आई सॉ द रीजनिंग एंड द लॉजिक। आई सेड ओके फ्रेंड्स, आई विड्रू दैट ईयर। नेक्स्ट ईयर पहली बार रोटरी में हमारे यहाँ पर यूनानिमस इलेक्शन हुआ मेरा। तो गवर्नर बनना है, उसके लिए कंप्लेन करें। 35 साल से रोटरी में हूं, मेरे अगेंस्ट में 20-25 चिट्ठियां लोगों ने लिखी होंगी। मेरे को एक चिट्ठी कोई आज तक नहीं दिखा सकता कि मैंने रोटरी इंटरनेशनल को उसके रिस्पॉन्स में या किसी के अगेंस्ट में लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे मे नॉट बी द सब्जेक्ट, बट आई टेल यू, आप कोई प्रोग्राम करेंगे, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, लोगों की लेंस जो होती है वो धुंधली हो जाती है जब वो पाकिस्तान और इंडिया और साउथ एशिया के कंट्रीज को देखते हैं, which is not good. I tell the same thing in my country and I'm telling you because I love the people there. Please इस बात का ध्यान रखें आप सब। गवर्नर्स इलेक्ट, गवर्नर नॉमिनी, ये बहुत जरूरी है। पीडीजीज, ये सब आपके ऊपर में है, आपको ये करने की जरूरत है। प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई एम आई टेलिंग दिस टू यू। मुझे फर्क पड़ रहा है। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे फर्क ये पड़ता है कि a country which can do so much good work, which has such good leaders, if they ensure this, एक कमी जो है बस इसको अगर आप ठीक कर लें तो things will happen. Once again, Tazim, I must compliment you for the initiative you have taken membership, लेकिन 20% पे रुक मत जाना, इसे 50% तक लेके जाना, और लेकिन सब मिलके इंश्योर करेंगे कि ये रिटेंशन हो। हमारे इस एरिया में रिटेंशन इज पुअर। हम मेंबर ले आते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं। टिकने की जरूरत है, रिटेन करने की जरूरत है। उन मेंबर्स का इंडक्शन हम बढ़िया से करें एंड उनको इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करें। साजिद, वंस अगेन माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। आउटस्टैंडिंग वर्क यू आर थिंकिंग एंड वांटिंग टू डू along with many other people. I am sure Aziz की सलाह लेते रहना। He is the representative from the foundation. He is the senior most leader you have, and foundation trustee का बहुत major role है, because please understand water and sanitation is a part of the 7 areas of focus of Rotary Foundation. And आप ही के घर में एक जन बैठा है बंदा जो कि foundation को represent करता है. So I think you have an excellent opportunity. And Aziz, you have to keep supporting them with global grants and with all your connectivity around the world. I must compliment here Faiz also for the work that he is doing in literacy, leadership he is showing in literacy. That also is really very, very nice. Faiz, convey kar diya jayega. I am really impressed by the work that you do. Ramesh, thank you once again. अभी पाकिस्तान में पहुंचे हो, नेक्स्ट बांग्लादेश जाना है, फिर नेपाल में करना है, साउथ एशिया होने के बाद अफ्रीका में जाने की जरूरत है। वहां यहाँ से कहीं ज्यादा किल्लत है पानी की और सैनिटेशन फैसिलिटीज की। We have to create models of good work that can be replicated across the world. Only then will we be able to make this world a better place to live in. Thank you very much, friends. It's been a pleasure coming and speaking to all of you. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आज भी, जैसे आपने बड़ी इंस्पायरिंग स्पीच दी, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। और मैं आपकी एक ऐसी ही स्पीच की वजह से इतना मोटिवेट हुआ और इंस्पायर हुआ कि मैंने ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में शुरू किया। एंड आई अश्योर यू दैट वी विल कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान एंड विद द all prerequisites, and we have did everything. एंड स्पेशली मैं आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहता हूँ कि जो आपने हमें रमेश जी की शक्ल में एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल एडवाइज़र के तौर पे हमारे साथ जोड़ा, और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सारी चीज़ें मुझे बताई कि आज हम ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने में कामयाब हुए। और मैं सर आपको बिल्कुल इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन और इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम करना है। हमारा फंडिंग या TRF के किसी भी प्रोग्राम को टच नहीं करने जा रहे इस लेवल पे कि जिसमें रोटरी इंटरनेशनल के साथ कोई भी चीज़ कंट्राडिक्ट करे। तो इंशाल्लाह ताला
हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है और इंशाल्लाह पाकिस्तान अजीज भाई ने ही हैज वेरी काइंडली सेंड मी डिफरेंट नेम्स वहाँ से सिंध से जो है वो लोगों के नाम भेजे कि इनको आप अपनी टीम में शामिल करें। अजीज भाई से इज द फर्स्ट वन जिनसे मैंने ये डिस्कस किया और उनकी सपोर्ट इंशाल्लाह हमें हमेशा रही है और आई एम स्टिल वर्किंग विद हिम सिंस लास्ट सो मैनी ईयर ऑन पोलियो एडिकेशन एफर्ट्स। और अजीज भाई जो है वो हमेशा सबके लिए उन्होंने जो है एक बड़े होने का काम अदा किया है और इंशाल्लाह हम आपको ये अश्योर करते हैं कि हमारी पूरी टीम जो है वो मिलकर काम करेगी और पूरे पाकिस्तान के सारे क्लब जो हैं हम उनको जो है फैसिलिटेट करेंगे टेक्निकल एक्सपर्टीज में और बाकी जो भी हम ग्लोबल ग्रांट्स के हवाले से अजीज भाई से पहले भी काफ़ी जो है वो मदद लेते रहते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो आखिर में मैं आप का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने बड़े ही अपने जो है वो बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया क्योंकि ये इनिशिएटिव आपकी वजह से ही मैंने शुरू किया है, आपकी अप्रूवल से और आपकी कॉन्सेंट से और आपने मुझे बहुत ही इसमें फैसिलिटेट किया है। आई वंस अगेन थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ बोथ द डिस्ट्रिक्ट। और इसके साथ साथ जो है मैं अब आपसे अगर आप इधर ही हैं तो मैं अजीज मेमन साहब उन्होंने भी एक मीटिंग के लिए आगे जाना है तो मैं उनके रिमार्क्स लेना चाह रहा हूँ। काइंडली PDG Aziz Memon, our trustee. So Sajid, much as I would have loved to listen to Aziz, पर उससे तो मेरा अजीज है, मैं सुनता रहूंगा और भी कभी. I will have to leave Aziz अभी. My next meeting starts in another 10 minutes time. But एक काम और करवाना अजीज, ये जो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं इन्हें टेक्निकल cadre में भी इन्वॉल्व करा लो. They should become technical cadre. If they register, Manoj Desai happens to be the world chairman for technical cadre. You can discuss with him. एशिया के लिए बाल डॉक्टर बाल इनामदार है. तो ये Sajid should lead. Sajid and the others should become part of that. जब technical cadre बन जाएंगे तो it will become very nice. Thank you for inviting me, and it was a pleasure listening to our friend President-elect Shekhar Mehta, and he shared most of the things which are important. Rotary Foundation has been working on 6 areas of focus for a very long time. And last month, after long deliberation and discussion, the 7th area of focus has been added, which is the environment. We are working with the other trustees to send out what would be the framework of environment. Once that is approved in the October meeting of the trustees, this will be then sent to the directors, and after that it would be uploaded on the Rotary website as to what a club and what a district can do in the area of focus of environment. Among the 6 areas of focus, as I mentioned just now, water and sanitation is one of them, and Rotary Foundation gives a lot of importance to water and sanitation. There are grants available, global grants available. Water and sanitation, if clean water is provided, it can eliminate several diseases. Many diseases are waterborne. We have, under the Polio Plus committee, put up so far 15 solar water filtration plants all over Pakistan, from Karachi to Peshawar. We are putting up another 5 with the help of a global grant. We have donors also. Just now, Shekhar Mehta mentioned about check dams. We have started the check dam project, and we have made former Federal Secretary Yunus Daga, for whom water is a dear subject. He is now a Rotarian. He is a member of Rotary Club of Karachi. So he is heading that. We had a meeting with the Chief Minister, and the Irrigation Department has agreed to mark 10 sites
for us in which we can start the check dams. I wanted to see the positive results of this before taking it forward to other provinces. My friend, water and sanitation, yes, it is an important subject. It is subject which touches everyone, which touches every heart. So good luck to you and thank you for inviting me. Thank you, Tazeen. Thank you, Sajid. Khuda Hafiz. Thank you very much, sir. No, अब हम जो है वो लास्ट हमारे अभी जो प्रोग्राम को आगे चलाते हैं, तो मैं इस वक्त उनको इनवाइट करना चाह रहा हूँ, ऐसी शख्सियत को, ऐसी पर्सनैलिटी को जिसने ये पूरे प्रोग्राम को बनाने में हमें हर तरीके से कोऑपरेट किया और हेल्प आउट किया, जो कि ना सिर्फ पहले भी हमारी एक मीटिंग में आ चुके हैं, बल्कि आज हम उनके रिमार्क सुनेंगे इस हवाले से। और TRF मेजर गिफ्ट एडवाइज़र हैं वाटर एंड सैनिटेशन पे भी, और चेयर हैं रोटरी इंडिया सैनिटेशन मिशन के। तो मैं इनवाइट करता हूं पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश अग्रवाल जी से कि वो अपनी एड्रेस करें। रमेश अग्रवाल जी। थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके दोनों गवर्नर्स को, तजीम भाई और साथ में डॉक्टर फरहन 3271 और 3272 के गवर्नर्स को, और साथ में जो आपके गाइडिंग लाइट हैं पाकिस्तान में TRF ट्रस्टी अजीज मेमन जी, और साथ में साजिद भट्टी, और जितने भी और आपके गैलेक्सी ऑफ पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं, इनकमिंग गवर्नर्स हैं, और जितने भी क्लब्स हैं आपकी दोनों डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान की, कि आज आप लोगों ने सभी ने मिलके ये रोटरी पाकिस्तान वाटर एंड सैनिटेशन मिशन को आज आपने लॉन्च किया है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसकी बेहद जरूरत है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, हमारे जैसे देशों को में इसकी सख्त जरूरत है। और साथ में आप लोगों ने जो वर्टिकल्स आइडेंटिफाई किए हैं आज, जिसके अंतर्गत आप लोग काम करेंगे, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वॉश इन स्कूल्स, वॉश इन हेल्थ केयर, कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, ODF, ये सारी चीजें आज इतनी ज्यादा रेलेवेंट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों पाकिस्तान की, तो आपके पाकिस्तान में 2 लाख के करीब स्कूल्स हैं, 5 करोड़ बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं, लेकिन आप यू विल बी शॉक्ड टू नो कि करीब 1/3 स्कूल्स में वॉश की फैसिलिटीज नहीं है आपके यहाँ पर। 2 करोड़ बच्चे आज भी स्टंटेड हैं पाकिस्तान में। 2 करोड़ लोग, 10% पॉपुलेशन बन जाती है आपकी, 2 करोड़ लोग अभी भी ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस को करते हैं, खुले में शौच करते हैं। तो चैलेंजेस हैं, जैसे कि अभी शेखर मेहता जी ने आपको बताया कि किस तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन, चेंज आपका ये प्रोग्राम लेके आ सकता है। जो 7 वर्टिकल हैं आज रोटरी फाउंडेशन के, उसमें वॉश, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है। आज ग्लोबल ग्रांट्स की मैं बात करूं, डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर वाटर सैनिटेशन हाइजीन का है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि इसकी क्यों जरूरत है और इससे हम क्या बेनिफिट लेके आ सकते हैं। अगर मैं स्टंटिंग की बात करूं, अगर आप सरप्राइज हो जाएंगे ये सुन के कि करीब 24.7 crore school days are lost every year because of poor wash facilities in schools. Just imagine कितना बड़ा इम्पैक्ट ये लेके आ सकता है। आज मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूं, जिसकी परवेज जी ने बात की थी कि आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2015 में जो यूनाइटेड नेशंस ने सेट किए हैं, उसमें जो 3 गोल हैं जो डायरेक्टली रेलेवेंट हैं अपने वॉश के साथ। Goal 3, we talks about providing, they talks about the well-being of human being on this earth. Goal number 6, 1 and 2 talks about providing water and sanitation, equitable access to water and sanitation. Or goal number 8 talks about
मैटरनल डेथ्स, नियोनेटाल डेथ्स। तो इसको अगर हम जो टारगेट यूनाइटेड नेशन ने भी सेट किए हैं, जो 2030 तक हम सबको अचीव करने हैं डेवलपिंग कंट्रीज ने, तो उसमें भी आपका ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और बहुत बड़ा परिवर्तन आपके इस प्रोग्राम से आएगा। और जैसे कि हमने इंडिया में इसको देखा, जैसे अभी शेखर दा ने इस चीज का जिक्र किया कि हमने जो नेशनल गोल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका 10% करने का चैलेंज किया। तो इसी तरह से आप लोग भी पाकिस्तान में नेशनल बिल्डिंग में आप लोगों को शामिल होना चाहिए और वहां पर भी आप इस तरह के 10% गोल्स या कुछ जो भी आप सेट करना चाहते हैं सेट कीजिए। जब तक आप बड़े गोल्स सेट नहीं करेंगे, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। और हम यहाँ इंडिया में बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि अब ये रोटरी क्लब्स के लिए समय चला गया है कि आप स्कूल में जाएं, पेंसिल बांटें, कॉपीज बांटें, छोटे छोटे काम करें, या कोई मेडिकल चेकअप कैंप्स आपने लगा लिया, उससे अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर रोटरी को कुछ अपना जज्बा दिखाना है तो हमको बड़ा सोचना है। वी हैव टू डू समथिंग बिग। मैं हिंदुस्तान में आपको बात बताऊं कि जितने हमारी रोटरी क्लब्स हैं, हम 30,000 सरकारी स्कूलों में आज इंगेज हैं। आज वॉश इन हेल्थ केयर में रोटरी इंडिया इंगेज होने जा रही है। तो ये वॉश के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स मैंने अडॉप्ट किए हैं, चाहे वो प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, जैसे हमारा प्रोग्राम है प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोग्राम की बात करें, या ODF प्लस स्ट्रेटेजी की बात करें, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यही सोच के की हैं शेखर दा के गाइडेंस में, इनकी लीडरशिप में, कि हमको कुछ बड़ा करके दिखाना है। न केवल हम अपने नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने देश को सपोर्ट करेंगे, अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे, और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम जो आम आदमी है उसके जीवन में लेके आने में सक्षम। और ये सारी चीजें रेलेवेंट है। आज मैं जितनी बीमारियों की बात कर रहा हूँ, जो नियोनेटाल डेथ्स की बात कर रहा हूँ, मैटरनल डेथ्स की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ तो आज हेल्थ केयर में हमारी जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वहां पर वाटर सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है। अगर है तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, वेस्ट डिस्पोजल नहीं है। तो ये प्रोग्राम सिर्फ इन सब चीजों के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। साथ में हम इसमें बात करते हैं कि जैसे परवेज भाई ने बिगिनिंग में बताया कि अगर कोई आपने हैंडपंप लगाया और वहां पर प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, तो वही जो वेस्ट वाटर है या सुवेज वाटर है, वही चीज मिक्स आपके पानी में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, fecal sludge management is equally important, solid liquid waste management is equally important। तो जब आप इन प्रोग्राम्स को करेंगे तो उन प्रोग्राम के करते करते में आप इन चीजों का भी आप लोगों को सबको ध्यान रखना है। और मुझे बहुत खुशी है, आई एम सो हैप्पी कि पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और विद इन दिस मंथ या इस मंथ में दोनों अगले महीने में रोटरी नेपाल भी सिमिलर प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रही है। वहां पर भी 5 तारीख को एक हमने मीटिंग रखी हुई है, उसमें हम इनिशियल डिस्कशन कर रहे हैं। और जैसे शेखर मेहता जी ने अभी रिक्वेस्ट की है कि हम बांग्लादेश की तरफ भी देखें, क्योंकि ये सारे जितने भी मुल्क हैं जो हमारे आसपास के, सबकी समस्याएं करीब करीब एक है, सब में सिमिलर चैलेंजेस हैं। तो हम सबको मिलके इन चैलेंजेस को का सामना करते हुए इनमें बहुत बड़ा एक जो भी परिवर्तन हम अपने देश के अंदर लेके आ सकते हैं, बदलाव लेके आ सकते हैं, हम सबको फोकस करना चाहिए। और जैसे अभी साजिद भाई ने कहा कि हमको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि हम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट की बात करें। हम ये जो cadre ऑफ टेक्निकल एडवाइजर है रोटरी फाउंडेशन का, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम शामिल करें। आपके जितने भी इस टीम के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनको आप रिक्वेस्ट करें कि वो अप्लाई करें। मैं भी एक टेक्निकल cadre हूँ, तो इस तरह से दैट हेल्प्स, क्योंकि उसका एक अपना अथॉरिटी है, उसकी एक रिकग्निशन है रोटरी फाउंडेशन में। अगर cadre मेंबर कुछ एडवाइस करता है, दैट मेक्स एन इम्पैक्ट। तो हम जितनी भी रोटरी फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल की गाइडलाइंस हैं, हम सबको उनको आपको पाकिस्तान में एडेयर करना है। यही हम हिंदुस्तान में एडेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, मैं तो हुई हूँ, आपको जो भी एडवाइस चाहिए, बट साथ में अजीज मेमन जी cadre पे आप लोगों को हम सबको फोकस करना है, और जिससे कि हम जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सीनियर लेवल पे, वो सारे टेक्निकल cadre के अगर मेंबर बन जाते हैं तो इट बिकम्स नेचुरल एंड मच इजियर, एंड किसी रुकावट के बिना ये सब कुछ होगा। और एक दूसरी एडवाइस मैं करना चाहूंगा, जैसे आप लोग पहले बोल ही चुके हो, हमको फंड रेजिंग की तरफ नहीं घुसना है। हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम एडवाइस करेंगे क्लब्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को,
और वो खुद अपने डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के माध्यम से, कैश कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, CSR के माध्यम से, या डायरेक्टेड गिफ्ट्स के माध्यम से, या ग्लोबल ग्रांट्स के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स करें। और वो जो प्रोजेक्ट्स करेंगे तो वहां पर एक इंटरनेशनल पार्टनर भी इन्वॉल्व हो जाता है, रोटरी फाउंडेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी रेलेवेंट एंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड follow the rules and regulations of the Rotary International and the Rotary Foundation, so that without any hitch, without any glitch, our program will continue for many, many years to come, and we will be able to make a meaningful impact and change in Pakistan through water sanitation hygiene by providing clean water and taking care of sanitation and hygiene management. And thank you so much for inviting me and for giving me this opportunity. And you can always count on me for any support, any help that you may require from my side, so that you are able to implement, this program in a very, very effective way. Thank you so much. Thank you so much, Ramesh. Wonderful speech by you. And I think that we really follow all the rules and regulation, and we are that. And at the end, I would like to ask for the remarks from different our advisors. And if I would like to request PDG Saeed Shamsi for his remarks on this. PDG Saeed Shamsi. देखिए, इतना शहर हासिल इसके ऊपर मतलब हमारी डिस्कशन हुई है। सबसे पहले तो बात यह है कि शेखर जी ने बड़ा सिंपल आपको बता दिया कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हमारा, मैं समझता हूँ, एक खुशकिस्मती है कि आने वाला जो रोटरी इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट है वो उन तमाम चीज़ों को समझता है जो हम पर बीत रही हैं, क्योंकि वो उसी बैकग्राउंड से है। उनके यहाँ भी जो सारे सालों में जो उन्होंने देखा है, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे यहाँ भी हैं, और उनके अंदर जो हमारे यहाँ कमजोरियाँ हैं वो भी उनको पता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इन बातों पे अमल करें। और रमेश साहब ने तो बहुत बड़ी बात की है, एक तो हम कार्डर में आ जाएं और अपनी एडवाइस दें लोगों को, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारी जो मुश्किलें हैं वो साझी हैं, हमारे जो वो कहते हैं ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस साझी हैं। तो इसलिए हम कोशिश ये करें कि अपने आप को इकट्ठा करें। शुक्रिया बहुत बहुत। इसके बाद मैं हमारे एडवाइजर हैं जहांगीर मुगल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने रिमार्क्स दें। जी, थैंक यू वेरी मच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तजीम साहब एंड PDG साजिद भट्टी साहब and Parvez Ahsan Sahab, PDG, for giving me the opportunity to speak to you on this occasion. जैसा कि President-elect Rotary International शेखर जी ने अभी बताया है कि this is a wonderful occasion that two districts have participated with each other, District 3271 and District 3272, for a very important subject of Rotary, that is water and sanitation. और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से कि under the leadership of the district governor, both the district governors and the chair of the district of the water and sanitation program, Sajid Bhatti Sahab, will be able to achieve the targets formulated by Ramesh ji and the President-elect of Rotary International. और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम जॉइंटली अच्छा काम करेंगे और बताएंगे कि रमेश जी को कि नहीं, पाकिस्तान भी काम करने के काबिल है और बेहतर काम कर सकता है। तो इंशाल्लाह ताला jointly we'll do, and we wish all the success to PDG Sajid Bhatti Sahab. Thank you so much. Thank you very much, Jahangir bhai. Or in the end, I would like to request our district governor to please pay a vote of thanks and concluding remarks to all the participants. Thank you, PDG Sajid. Thank you, Agarwal ji. Thank you, Aziz और हमारे शेखर मेहता जी. It was a wonderful meeting. आज I feel proud कि मेरे टेन्योर में एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील देने जा रहे हैं जो कि नेशनल वाइड काम करेंगे
और जैसा कि शेखर जी ने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट को मिल के हार्वेस्टिंग के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करना चाहिए। तो आई थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज्वाइन किया, और शेखर जी ने जो कि फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट में आए, तो इस तरह मेरी सबको सपोर्ट है कि ड्यूरिंग माय ईयर ये वाटर मिशन जो भी लॉन्च हुआ है, तो ये मिल के काम करें, और लोग जो भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेट देम कम फ्रंट, ज्वाइन करें। हम लोग मिल के अपने मुल्क को संवारेंगे, अपने मुश्किलात को दूर करेंगे, अपने लोगों की मदद करेंगे। विद दैट आज की मैं मीटिंग को इस उम्मीद से ख़त्म करता हूं कि अगली मीटिंग तक हम लोग सब खुश रहें, सेफ रहें और नेक काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच।